Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to machine learning. So we're back with a very important discussion on the decomposition of the generalization error of any machine learning algorithm. So आपको याद होगा कि we have been discussing the bias variance trade-off. We have been discussing that all errors are made up of either bias errors or variance errors or a third type of errors which is known as the irreducible error or noise. लेकिन इस चीज़ को formally हमने कभी prove नहीं किया. So ये आज की जो वीडियो है it's more of a theoretical video in which we want to see how and why we say that all errors of machine learning algorithms are composed of these three types of errors. So they comprise these three types of errors. तो हमने ये तफसील से देखना है. This is, as I said, a bit of a theoretical lecture. इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप पूरी तवज्जो से सुने. So unlike many other lectures जहाँ पर थोड़ी सी गुंजाइश होती है तवज्जो हटाने की, यहाँ पर नहीं है. So stay with me. ये मुश्किल नहीं है. इंशाल्लाह we'll go step by step. हर स्टेप को हम एक्सप्लेन करेंगे. साथ साथ इसमें तकरीबन कोई 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आई नीड टू लाइक पुल अ क्यूट बनी आउट ऑफ माई स्लीव. तो दैट वो जो मैथमेटिकल मैजिक है वो यहाँ पर होना बीच में ज़रूरी होगा. एंड आई बी वेरी ओपन विद यू कि कहाँ पर मैं ये करने लगा हूँ. तो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट द decomposition of the generalization error of a machine learning algorithm. इस डिस्कशन के लिए हमारा जो मेन रेफरेंस है, मैं इनफैक्ट बहुत क्लोजली फॉलो करूंगा इस फर्स्ट रेफरेंस को, विच इज़ एन एक्सीलेंट लेक्चर बाय प्रोफेसर किलियन वाइनबर्गर. सो द वीडियो ऑफ द लेक्चर is basically, so the videos 19 and 20 on YouTube in his lecture series cover this discussion. 19 is the primary one where he covers the bias variance error decomposition. So I would highly recommend that you go and watch the original video. But in my slides, most of the material is coming directly from his notes and also the notes which both he and myself recommend that you go through. So this is the second link. You should go through that as well. So we have some diagrams which are coming directly from these notes, but we will be closely following the first reference. And thirdly, because in today's discussion the expected values for continuous and discrete variables are important, therefore although we revised it earlier as well, लेकिन अगर आपने नहीं revise की कुछ वक्त से, तो these are some excellent resources which you can use to quickly revise and brush up your concepts regarding random variables and expected values of random variables. All right, Ji. So our goal is to come up with a decomposition of the generalization error. So let's quickly look at the setup first. So assume कीजिए कि there is a distribution P और हमारा जो, और ये this is basically the same assumption जो कि हमने supervised learning के setup से लेकर मुसलसल देखते आ रहे हैं. So we have not been changing that. It's the same assumption कि we have our distribution P that we have sampled to create our data set D. और यहाँ से हमने ये x1 is basically your first feature vector, and this is the label for this vector, and so on and so forth until for these n points. So आपके पास ये n instances हैं drawn IID from the distribution P xy. अच्छा, इस proof के लिए we are assuming a regression setting. यानी आपका जो output label है that belongs to the set of real numbers. ये regression setting ज़रूरी नहीं है, it just helps bring out the final conclusions in a more crisp and easy manner. So सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, although this whole thing is generalizable to a classification setting as well. इसके साथ साथ जो हमारा throughout मैं refer कर रहा हूँगा उस machine को, उस predictor को, I'll keep calling it a classifier. So yeah, ये regression कर रहा है, but I'll keep calling it a classifier. आपको पुरानी discussions में याद है कि हम किस तरह से इन चीज़ों को interchangeably show भी करते रहे हैं कि a classifier which basically predicts a set of infinite outputs is basically doing regression. So वो खैर आपके लिए इतना ये वाली चीज़ समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए. अच्छा जनाब, so our goal with this exercise is to decompose the generalization error of a classifier into 3 interpretable terms that we can work with throughout our machine learning journey. यहाँ पे I really like one of the things that Weinberger says in his lectures is that this discussion around the error decomposition is what differentiates between the children and adults in the world of machine learning. So it's that important, like really understanding what your errors mean and what they're made up of, and then how can you work on those components to reduce the right one at the right time. This is what really allows you to do more informed machine learning.
All right, so let's start by setting up a few descriptions. So the way हम आज की इस proof को कर रहे होंगे, इसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले I'll come up with a bunch of descriptions. कुछ हम ना चीज़ें बनाकर अपने पास 4 चीज़ें बनाकर अपने पास रख लेंगे और उसके बाद हम एरर डिफाइन करेंगे कि किस तरह से हम, और वो बेसिकली स्क्वायर लॉस की बेस पे हो रहा होगा, वो आपके लिए बड़ा फेमिलियर सी टर्म होगी कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल लेबल एंड द प्रिडिक्टेड लेबल, उसके बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा एरर होगा, उसका हम स्क्वायर ले रहे होंगे। लेकिन उसको फिर हम आगे से फर्दर एक्सपेंड करेंगे और जो डिस्क्रिप्शंस पहले से बनाई होंगी वो उसमें रीयूज़ करेंगे। एंड देन जैसे मैंने कहा, दो जगह के ऊपर दो क्यूट लिटिल बनी जो है वो मैंने अपने हेड से निकालने, and then you'll have your final nice glowing and glittering proof कि ये error किस चीज़ से बना हुआ होता है। All right जी। So the first description that we need to have with us is the expected label given input feature vector x. अच्छा, अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि for any given input x there might not exist a unique label y without being inconsistent. एक तो है ना जो हमने पहले इससे कहा था कि जी सेम फीचर्स की वैल्यूज हैं लेकिन आउटपुट लेबल डिफरेंट है, ये इसको हम इनकंसिस्टेंसी या नॉइज के तौर पे हमने डिफाइन किया था। लेकिन ऐसी चीज़ होना रियल भी मुमकिन है। लाइक फॉर एग्जांपल इन अ रिग्रेशन सेटिंग, इफ अ वेक्टर x describes features of a house, for example number of bedrooms, square footage, and y the label y, the output is the price of the house. तो यहाँ पर ये होना मुमकिन है कि there might be two houses which identical description but they sell for a different price. सो हो सकता है कि इनमें कोई और चीज़ डिफरेंट हो जो हमारे फीचर्स में कैप्चर ना हो रही हो। सो हमारे फीचर्स की वैल्यूज एग्जैक्टली द सेम है लेकिन प्राइसेस में थोड़ा बहुत या इवन ज़्यादा भी डिफरेंस हो सकता है। सो therefore for any given feature vector x there is a distribution over possible labels, there is a distribution over prices. यानी 5 बेडरूम हैं, स्क्वायर फुटेज इतनी है, इतने बाथरूम्स हैं, इतनी स्टोरीज बनी हुई हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब डिस्क्रिप्शन सेम है लेकिन दो घरों के प्राइस डिफरेंस है। हो सकता है कि एक फीचर जो हमने नहीं कंसिडर किया कि वो कौन से एरिया में है, एक घर लेट्स से डिफेंस में है और दूसरा घर हो सकता है मिसाल के तौर पर आई डोंट नो कैवलरी ग्राउंड में या व्हाटएवर, और उनके बीच में जो है वो कोई डिफरेंस है, राइट? ओके, यू गेट द आइडिया। So the first thing that we want to define is the expected label given the input feature x. तो अब यहाँ पे हम expected values use करेंगे random variables की, और therefore यहाँ पर the first description that we're coming up with is the expected label given x belongs to the set of real numbers. ठीक है, so आपका expected label जिसको हम y bar से explain कर रहे हैं, y bar से indicate कर रहे हैं, वो है the expected label of y given x. ठीक है, और वो निकलेगा कैसे? सो हम क्योंकि कंटिन्यूस लेबल्स की बात कर रहे थे लिहाजा हम यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स वाला तरीका एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए लगाएंगे। सो ओवरऑल y it is just the label into the probability of that label given the input feature vector x. ठीक है, so y probability of y given x into dy. ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया। सो दिस इज बेसिकली आर एक्सपेक्टेड लेबल given an input feature vector x. ठीक है, so the expected label denotes the label we expect to obtain given a feature vector x. So this is, इसको याद रखना है इन चारों को जो हम ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बना रहे हैं, इनको बाद में हमने रीयूज करना है। All right. The second definition that we want here is that, okay, how do you create your data set? We draw our training set D consisting of n instances IID from the distribution P. All right, so next we typically call some machine learning algorithm. अगला काम हम क्या करते हैं जब डेटा सेट आ जाता है, हम किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल SVM या डिसीजन ट्रीज या KNN, कोई हमने जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम A को उठाया और उसको इस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया टू लर्न अ हाइपोथेसिस, जिसको हम अपना क्लासिफायर कहते हैं, इट्स बेसिकली दी हाइपोथेसिस। और इस प्रोसेस को हम लिखते हैं H of D, यानी वो हाइपोथेसिस जो डेटा सेट D पे ट्रेन हुई हुई है, और ये हमारे एल्गोरिथम A को हम भेजते हैं डेटा सेट और वो हमें हाइपोथेसिस ट्रेन करके दे देता है। यानी इसका क्या मतलब है कि आपका मिसाल के तौर पे डिसीजन ट्रीज वो A है जिसकी तरफ आप गए हैं, उसको आपने अपना डेटा सेट D दिया है और उसने आपको एक ट्रेन करके ट्री दे दिया, सो दैट्स अ पर्टिकुलर ट्री फॉर दिस डेटा सेट D। ठीक है, या आपने मिसाल के तौर पर कोई लॉजिस्टिक रिग्रेशन की है या आपने लीनियर रिग्रेशन की है या कोई भी चीज़ की है, हम रिग्रेशन सेटिंग की बात कर रहे हैं तो हम ट्री की बात कर लेते हैं, रिग्रेशन की बात कर लेते हैं, लीनियर रिग्रेशन की बात कर लेते हैं कि उसे हमने दिया और उसने एक सेट ऑफ पैरामीटर्स हमें ट्रेन करके दे दिए। दैट्स बेसिकली दैट गिव्स अस दैट क्लासिफायर नाउ, दैट एज हाइपोथेसिस नाउ is ready to give us the output label y given a feature vector x. ठीक है, इस एज को ही हम पास किया करते हैं ना, x तो हमें ये y दे देता है। ठीक हो गया, सो ये हमारे पास एक इंस्टेंस उस डिसीजन ट्री की या उस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की या उस किसी भी एल्गोरिथम की हमारे पास न्यूरल नेट की ट्रेन होकर आ गई है।
All right. So for a given HD, अब तवज्जो से सुनना है, for a given hypothesis trained on dataset D, so learned on dataset D with algorithm A, we can compute the generalization error as measured in squared loss. ठीक है, so अब हम squared loss के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन अभी किस चीज़ का, इंस्टेंस का. ये पूरे डिसीजन ट्रीज का एरर नहीं है, ये उस डिसीजन ट्री का एरर है जो हमारे पास डेटा सेट डी के ऊपर ट्री ट्रेन होकर आया है. ऑलराइट, सो दैट एक्सपेक्टेड टेस्ट एरर गिवन एच डी, given that one instance, ये बस याद रखना है, ये नहीं भूलनी बात, ये इंस्टेंस है उस डिसीजन ट्री की, नॉट डिसीजन ट्री एल्गोरिथम इन जनरल. ठीक है, सो हियर द एक्सपेक्टेड error would be E, where xy is sampled from your set of xy is sampled from your distribution P. So this is hd given x minus y. So this is your hypothesized label, this is the actual label. So it's just the difference between the hypothesized label and hypothesized by whom, by the classifier that was trained on dataset D. इसने जो hypothesize किया है minus the actual label. So the price जो इसने hypothesize की थी minus the actual price and squared. इसका square याद होगा आपको, इसलिए लेते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव सबके सब पॉजिटिव हो जाएं, एक डायरेक्शन में हम एरर को क्यूमुलेट कर सकें. अब ये निकलेगा कैसे, ये बेसिकली आगे एक्सपेक्टेड जो आपके पास एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये कह रही है कि वी गो ओवर ऑल ऑफ द एक्सेस एंड वी गो ओवर ऑल ऑफ द वाइज एंड वी एक्यूमुलेटेड एज एच ऑफ डी एच डी ऑफ एक्स. सो इस जो हमारा हाइपोथेसिस है ट्रेन्ड ऑन दिस क्लासिफायर ट्रेन्ड ऑन डेटा सेट डी, इसको एक्स पास किया, इसमें से माइनस किया ओरिजिनल वैल्यू को जो इस लेबल की है, इसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी, the joint probability of the occurrence of this x and y. जिस x y के ऊपर आप इटरेट करते हुए इस इनफिनिट इटरेशन में पहुंचे हैं, उस x y की प्रोबेबिलिटी क्या है. ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय दिस dy dx. ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया. बिकॉज x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है होपफुली आपके डेटा सेट में इनपुट फीचर्स और आउटपुट फीचर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, किसी एक ही घर की प्राइसेस हैं जो हर इंस्टेंस में लिखी हुई हैं. सो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज़. सो दिस एक्सप्रेशन, दिस एंटायर एक्सप्रेशन, लेट मी मेक इट नाउ क्लीनर so that आप इसको रीड कर सकें. This entire expression gives you the expected error of your trained classifier. ठीक है, so this is an instance of the entire algorithm. ठीक है, ये एक trained ट्री है जिसका आपने ये निकाल लिया, बिकॉज हम सारे डीज पे तो नहीं गए ना, हमने खाली उस एक ही डी के लिए इस पूरी कहानी को सॉल्व किया है. ठीक है, आई होप यूर विद मी. सो दिस इज आवर सेकंड डिस्क्रिप्शन. सो वी कैन यूज़ एनी अदर लॉसेज बाय द वे, ज़रूरी नहीं था कि हम यही यूज़ करते. स्क्वेयर्ड लॉस इसलिए यूज़ किया है कि ज़रा आसान है इसके साथ काम करना और हमारी जो फाइनल कंक्लूजन है ज़रा क्लियरली बाहर आती है. सो इट्स अ नाइस, इट हैज़ नाइस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स द मोस्ट कॉमन लॉस फंक्शन एज वेल. ये हम यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं. आपको याद होगा कब हमने इसको रिग्रेशन के बाद छोड़ा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जाकर. सो लीनियर रिग्रेशन में हम ये यूज़ करते रहते हैं. सो बिकॉज वी आर इन अ रिग्रेशन सेटिंग, सो स्क्वेयर्ड लॉस मेक्स परफेक्ट सेंस. All right, now we have a bigger question. आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना, हमने असल में तो जनरलाइजेशन एरर एक ट्रेन ट्री का तो नहीं निकालना, हमें तो पूरे डिसीजन ट्रीज का एक्सपेक्टेड एरर चाहिए, लेकिन उसके लिए एक एक कदम करके अब हम एल्गोरिथम की तरफ बढ़ रहे हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि गिवन an algorithm A, what's the expected value for a particular classifier? कि इस एल्गोरिथम में से यानी डिसीजन ट्रीज में से ये वाला पर्टिकुलर डिसीजन ट्री निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है. सो द प्रीवियस स्टेटमेंट इज गिवन इज ट्रू फॉर अ गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट डी, जैसा कि हमने देखा था. सो डी इटसेल्फ इज ड्रॉन फ्रॉम Pn. सो Pn कैसे, क्योंकि n टाइम्स IID ड्रॉ हुआ था फ्रॉम P. ठीक है, सो P raised to power n से आ रहा है एंड देयरफॉर इट्स अ रैंडम वेरिएबल. सो D itself is a random variable. और जो इसके ऊपर आपने HD ट्रेन किया है, यानी आपने डिसीजन ट्रीज को अपना डेटा सेट दिया और उसने आपको HD ट्रेन करके दिया, दैट इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ D. ठीक है, सो इट इन इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल. देयरफॉर हम इस रैंडम वेरिएबल की भी एक्सपेक्टेशन कंप्यूट कर सकते हैं, विच वुड बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर क्लासीफायर, यानी उन सारे पॉसिबल क्लासीफायर्स में से जो कि ट्री बना सकता था डिफरेंट डेटा सेट्स के लिए, इस पर्टिकुलर की क्या प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है. ठीक है, सो द एक्सपेक्टेड क्लासीफायर गिवन अ पर्टिकुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज दिस. ये क्या कर रहा है, सो दिस इज योर एक्सपेक्टेड क्लासीफायर where D comes from, D sampled n times from this distribution P, h of D, and simply by description, by definition, you go over all of the possible data sets जो कि sample हो सकते थे आपके Pn से, सारे के सारे डेटा सेट्स में एक एक करके. सो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं,
एक डी के लिए, सो डी कैपिटल D1 के लिए एक क्लासीफायर बनेगा, D2 के लिए दूसरा बनेगा, D3 के लिए तीसरा बनेगा, इन्फिनिट मैनी डेटा सेट्स आ सकते हैं, इन्फिनिट मैनी क्लासीफायर्स बन सकते हैं. सो हर एक क्लासीफायर weighed by its the probability of that data set जिसके ऊपर ये ट्रेन हो रहा है. So इसकी मदद से we find the expected classifier, the classifier, the weighted average classifier जो हमारे पास आने के चांसेस है. ठीक है, तो हम यहाँ तक अब पहुँच गए हैं कि हमें समझ आ गया है कि for a given machine learning algorithm हर क्लासीफायर आने की हमारे पास expected value. So what's the expected classifier? ठीक है, so where this PRD is the probability of drawing a data set D from Pn and H is the weighted average over functions HD. So I hope you're with me. Now बस एक आखिरी चीज़ रह गई है जो हमारा असल में ग्रैंड ट्रॉफी मोमेंट है जिसके लिए हम सब कुछ इंतजार कर रहे थे. वो ये है कि now what's the expected test error on a test data set for a given machine learning algorithm A. देखिए ना, हम इसमें तो इंटरेस्टेड नहीं थे कि इस पर्टिकुलर ट्रेन ट्री का एरर कितना है, हम तो इसमें इंटरेस्टेड थे डिसीजन ट्रीज का एरर कितना है. तो अब हम उसके ऊपर आ गए हैं कि एक्सपेक्टेड एरर ऑन योर टेस्ट डेटा for a given machine learning algorithm. All right, so we can use the fact that HD is a random variable to compute the expected test error given an algo A taking the expectation over D. ठीक है, सो अब हमने ये देखना है कि उस एल्गोरिदम ने वो सारे के सारे जो क्लासीफायर्स वो ट्रेन कर सकता था उनके अक्रॉस हमारे पास एक्सपेक्टेड टेस्ट एरर क्या आता है. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी वर लुकिंग फॉर. इसको मिलके एक दफ़ा पार्स कर लेते हैं. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड टेस्ट एरर वेयर एक्स वाई इज कमिंग फ्रॉम पी. ठीक है, ये एक्स वाई बाय द वे क्या है, ये आपके टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, इनको मिक्स नहीं करना. सो दिस इज योर टेस्ट डेटा, दिस इज टेस्ट डेटा एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज ट्रेनिंग डेटा. दिस इज योर ट्रेनिंग डेटा. सो जब आप ये एरर निकालेंगे तो आप ट्रेंड क्लासीफायर्स का टेस्ट डेटा के ऊपर निकालेंगे, लिहाजा दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. ठीक है, एंड नाउ दिस एच डी एक्स माइनस वाई यानी द हाइपोथेसाइज्ड लेबल एंड द एक्चुअल लेबल, इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ से, ये एक्स क्या है, ये आपके टेस्ट डेटा पॉइंट है ना कि ट्रेनिंग डेटा पॉइंट. ये क्या है, ये आपके ट्रेनिंग डेटा है. तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से अपने जहनों के अंदर वाजे कर लें. एच डी एक्स आ रहा है ट्रेनिंग डेटा से, जबकि y आ रहा है एक्चुअल टेस्ट डेटा के लेबल से, और x आ रहा है आपका टेस्ट डेटा के इनपुट वेक्टर से. ठीक हो गया, सेटिंग समझ में आ गई. ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल मैथ्स की जगह अब एक रियल चलता हुआ रूटीन लग रहा है. अब यहाँ पर आगे आते हैं. सो देखिए, पहले एच डी एक्स माइनस वाई. सो एक्स क्या है, टेस्ट डेटा पॉइंट, टेस्ट डेटा इनपुट. ये क्या है, टेस्ट लेबल. This is your test label, this is your test input feature vector. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाला. ये D क्या है, this is your training data, डेटा सेट जिसके ऊपर ये वाला H ट्रेन हुआ है. ठीक है, सो आपको इस काम के लिए सारे एक्स वाइज पे जाना है, यानी आपने सारे टेस्ट डेटा पॉइंट्स पे जाना है और सारे पॉसिबल क्लासीफायर्स ट्रेन करने हैं जो कि इस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ट्रेन होकर आ सकते हैं. रिमेंबर, आपका जो HD था वो किस तरह से आ रहा था, A ऑफ D से आ रहा था. तो आपने सारे के सारे क्लासीफायर ट्रेन करने, यानी आप सब D's के ऊपर जाएंगे, सारे ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जाएंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं फॉर दैट एल्गोरिदम A, एंड देन फॉर ऑल टेस्ट डेटा पॉइंट्स आपने इसको चलाना है. अच्छा, अब यहाँ ये याद रहे कि एक्स वाई तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है और ना ही उन्हें होना चाहिए, लेकिन D इनसे इंडिपेंडेंट है. देखें, D का कोई ताल्लुक नहीं है एक्स वाई से, वो एक अलग ड्रॉ में निकला है एंड दैट्स बेसिकली द वे इट्स डिफाइंड. तो अगर ये आपका टेस्ट डेटा सेट भी IID निकाला है आपने डिस्ट्रीब्यूशन P से, जो कि हम यहाँ पर शो भी कर रहे हैं कि हमने ये IID निकाला, सैम्पल किया है, और हम जब भी सैम्पल कर रहे हैं वो IID कर रहे हैं, तो हम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और इंडिपेंडेंट भी है. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन D एंड XY आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, D खुद अपने XY से बना हुआ होगा, ये तो आपको पता ही है ना कि D खुद भी XY से बना हुआ होगा. सो D जो डेटा सेट जिस पे ट्रेनिंग की है और XY जिस पे टेस्टिंग की है, दोनों अलग अलग टाइम पे ड्रॉ हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन से और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. देयरफॉर यू सी कि हमने यहाँ पे जब उसको वे किया है तो इनको अलग अलग प्रोबेबिलिटी से किया. इट्स नॉट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ XY D, इट्स द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ XY बिकॉज दिस XY इज एसेंशली योर टेस्ट XY and this D is essentially your training set. This is your training set. So the probability कि मुझे ये training data set मिलेगा और the probability कि मैं इस particular instance test instance के ऊपर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ multiplied by dx dy dt.
ठीक है जी, क्लियर है? सो आई होप दिस इज नॉट टू इंटिमिडेटिंग फॉर यू, दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ इट। इसके साथ अब हमने इसको फर्दर मसाज करना है, इसके साथ खेलना है। बट अब आप यहाँ पर आपको जो चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, जो डिपेंडेंट हैं, वो सारी की सारी होपफुली क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मैं ज़रा क्लटर थोड़ा सा रिमूव कर दूँ और उसके बाद आगे चलते हैं। ऑलराइट, bear with me. All right, so D is our training data points, is the data set. XY pairs are the test points. This expression evaluates the quality of a machine learning algorithm A, जिसमें हम interested थे, with respect to a data distribution PXY, जहाँ से इसको sample किया गया है D's को, और जहाँ से बाद में sample किया गया XY's को, बाद में या जब भी। So order important नहीं है, by the way. So now let's see what this expression is made up of. Now this is the next goal, कि अब इस expression को पकड़ना है। ये है वो error जिसको हमने पकड़ के फर्दर डिकम्पोज करना है और उसको समझना है कि ये किन चीज़ों से बना हुआ। तो अब तैयार हो जाएं वो फॉर द बनीज आउट द हैट ना, बस वो आने ही वाले हैं। सो वी आर वेरी क्लोज नाउ, वी आर क्लोज नाउ, वी जस्ट नीड टू मसाज दिस, ओपन दिस अप एंड देन डिकम्पोज दिस। All right, so next we will just take this expression which we have just calculated and we'll just play with it a little bit. So ये हमारे पास expression है जहाँ पर हमने expected test error निकाला हुआ है of an algorithm, और इसके अंदर अब जो चीज़ हमें मिसिंग नज़र आ रही है वो हमारा expected classifier है. So we do see here the particular classifier which is trained on the dataset D, जिसको हमने x जो हमारा input vector है test data का वो पास किया है, और y output label है। यहाँ पर अगर हम एक क्यूट लिटिल मैथमेटिकल ट्रिक करें और हम यहाँ पर प्लस माइनस कर दें h bar of x. So this is the first trick that we're going to use. We'll just add and subtract both this h bar of x. And once we do that and just reapply these parentheses, तो हमारे पास ये expression आता है. So we have just like subtracted and added h bar of x, और उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगा दिए। So we are well within our safe zones. यहाँ पे हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे हम इसकी वैल्यू को ख़राब कर रहे हैं। All right. So now what we have are these two expressions. This one actually here and this one. So let's call this a and let's call this b. तो ये पूरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये a plus b whole square है, which means कि ये open होगा a square plus b square plus 2ab. So let's do that. If we do that, और यहाँ मैंने कुछ इसको रिकलर कर दिया है just to collect the values. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अब expected value of these things ये बन गया है. So this is your a square, this is your b square and this is your 2ab. यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जो यहाँ पर वेरिएबल अब अप्लाई नहीं होना था उसको हमने निकाल दिया। फॉर एग्जांपल हियर यू सी एक्स वाई एंड डी, बिकॉज डी की भी ज़रूरत है, एक्स की भी ज़रूरत है और वाई की भी ज़रूरत है। यहाँ पर यू जस्ट सी एक्स एंड डी, सो यू जस्ट नीड एक्स एंड डी, यू डोंट नीड द वाई हियर, एंड हियर यू जस्ट हैव एक्स एंड वाई, यू डोंट नीड द डी हियर। ठीक है, नाउ इन दिस न्यू एक्सप्रेशन वी विल जस्ट फिगर आउट कि इन तीनों चीज़ों की क्या वैल्यूज़ है। लेकिन पहला काम हम ये करेंगे कि सेंटर वाले को देखेंगे, and our claim is कि this whole thing evaluates to 0. इस चीज़ को समझने के लिए I'll just take this bit out and I'll start working with it. So the middle term of this equation is 0 as we show here. So इसको हमने खाली ये सेंटर वाली चीज़ को निकाल लिया है, और इसको 2 मिनट आप भी ज़रा गौर कर लें, इसे घूर लें और फिर देखें कि आपके जहन में क्या आता है कि किस तरह से ये 0 हो सकता है। आई होप कि आपने पॉज करके थोड़ा सा सोचा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये टेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं जिसका ये इनपुट है और ये इसका आउटपुट लेबल है, तो ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। लेकिन ये x y d से इंडिपेंडेंट ज़रूर है। सो d इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। सो हम इसकी वैल्यूज़ को रिकलेक्ट कर सकते हैं इस अंदाज से। सो यहाँ हमने क्या किया है, हमने d को अंदर भेज दिया है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर एक्स वाई, और यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर डी अंदर चली गई है, और ये इस पूरे अंदर वाले एक्सप्रेशन के ऊपर अब चल रही है। सो जहाँ जहाँ ये अप्लाई हो सकती थी ये वहाँ अब अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम इसको अंदर ले आए हैं और यहाँ पर यू गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डी ओवर एच डी ऑफ एक्स माइनस एच बार ऑफ एक्स, और एच बार ऑफ एक्स माइनस वाई ये उसी तरह से है। इसके अंदर डी नहीं है, लिहाजा ये वहाँ पे इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें तो इस जगह डी का कोई काम नहीं है। सो देयरफॉर ये रिकलेक्ट हो जाएगी सिर्फ इतनी जगह के ऊपर। So you have the expected value over d over h dx minus h bar of x, और दूसरी तरफ आपके पास h bar of x minus y. Now my question to you is, what is this? The expected value over all of the data sets of this classifier which is trained on D.
सो ये किस तरह से बनेगी, अगर आपको याद हो जो हमने शुरू में 4 डेफिनेशंस की थी उनमें से एक डेफिनेशन ये भी थी जहां पर हम इसेंशली एक्सपेक्टेड क्लासिफायर निकाल रहे थे। तो हमने क्या किया था कि हमने सारे पॉसिबल डेटा सेट्स जो निकल सकते थे उनके ऊपर एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट की थी विच वॉज डिफाइंड एग्जैक्टली लाइक दिस। So this whole thing is essentially h bar of x, this expected value over the entire पॉसिबल सेट डेटा सेट्स जो हमारे पास आ सकते हैं, जो कि हमने सबके सब जो है वो सैम्पल किए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन पी से। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कम्स आउट टू बी h bar of x, ठीक है। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ h of x अक्रॉस ऑल दीज वेटेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच d इज जस्ट h bar of x, ये बार यहाँ पे थोड़ा सा छुपा हुआ है, h bar of x। तो ये हम पहले 3 में जो हमने कैलकुलेट किया था, यू कैन गो बैक एंड रेफर टू योर नोट्स, वहाँ पे हम ये एक्सपेक्टेड क्लासिफायर निकाल कर आए हैं। सो वंस वी basically substitute that, we get h bar of x minus h bar of x which gets cancelled and this whole thing becomes 0. So यहाँ 0 आ गया तो ये पूरी चीज़ multiply होकर 0 हो गई, therefore this whole thing becomes 0. Feels nice, right? जब इतना बड़ा expression बीच में से निकल जाए, it feels nice. So now when we return to the original expression, we are left with this. And now for the first time, we can ask ourselves what this thing is. What this thing is. वैसे तो नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें, so your h dx is a random variable and this is the mean of the random variable. This is the expected classifier. So this is the classifier, expected classifier, and this is one instance of that classifier trained on dataset D. ठीक है, ये over entire datasets D के ऊपर से ये mean निकला है, weighted average निकला है, जबकि ये वाला जो है ये एक है. So for any random variable, the difference between the random variable and its mean squared is essentially the variance of that random variable. So पहली चीज तो हमारे सामने clear होके आ गई. Now we know that this first term evaluates to variance. ये second term अभी हमारे सामने clear नहीं है, इसकी बात अब हम मजीद आगे बढ़ाते हैं. Alright, so now let's look at the second term. और अब उस second term को हम further expand करने की कोशिश करते हैं using a similar trick as we used before. So this is the second term that we want to further expand. और जैसा कि पिछली दफ़ा हमने किया था ट्रिक कि वी हैड एन एज हियर, तो हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस थी तो लिहाजा हमने उसकी जगह पे एवरेज क्लासिफायर प्लस माइनस कर दिया था। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल लेबल है तो हम यहाँ से द एक्सपेक्टेड लेबल, द एक्सपेक्टेड आउटकम, उसको प्लस माइनस कर देंगे। सो दिस y bar of x, दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटकम, द एक्सपेक्टेड लेबल, द एक्सपेक्टेड आउटपुट, इसको अब हम यहाँ से प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स डू दैट. So we just add and subtract y bar of x. Let me clear the clutter. And we regroup और उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से जो है वो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो this is, let's assume a and this is b. So this is your a and this is b. So again this is a plus b whole square and this will become a square plus b square plus 2ab. So here you get those terms, a square plus b square plus 2ab. और अगेन हमारा यहाँ पर अब ये क्लेम है कि ये जो हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है जो मैंने रेड में लिखी हुई है, ये वाली टर्म, दिस टर्म इज बेसिकली जीरो. सो लेट्स सी हाउ दिस इज जीरो. अब आप थोड़ी देर बेशक पॉज करके इस पर गौर कर लें कि ये ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर एक्स वाई है, अंदर ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा. यहाँ पर आपके पास ये एक्सपेक्टेड क्लासिफायर है, ये आपके पास एक्सपेक्टेड लेबल है, नॉट द रियल लेबल, एक्सपेक्टेड लेबल. सो इन्फिनिटली मैनी इंस्टेंसेस आपके पास हों डेटा सेट के अंदर, जितना मर्जी डेटा उसके अंदर हो, उसकी मदद से आपके पास जो लेबल, आप बेस्ट लेबल जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये वो है, दिस इज द एक्सपेक्टेड लेबल. ठीक है, एंड दिस इज द रियल लेबल जो एक्चुअल इस डेटा पॉइंट का लेबल है. ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर हैं और आप अब थोड़ा सा गौर करें कि किस तरह से ये जीरो हो सकता है. Alright, I hope you paused और आपने इसको किया. Let's move on. So the third term is 0 as follows. आपके पास ये पूरी चीज़ आ रही है. अगर आप ये गौर करें x और y एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है. So x आपका इनपुट फीचर वेक्टर है एंड y आपका लेबल है जो इस इंस्टेंस का है. So लिहाजा अगर मैं इन दोनों टर्म्स को अलग करके एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाना चाहूँगा तो मुझे y गिवन x करके अंदर ले जाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं गिवन करके ले जा सकता हूँ. So let me do that. So I basically take this in. So expected value over x and this expected value of y given x, और जिसको मैंने अप्लाई कर दिया है इतनी चीज़ के ऊपर. यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया? क्योंकि यहाँ y नहीं है. एक बात ये अच्छी तरह से समझ लें कि y बार जो है ये y नहीं है. दिस y बार इज एसेंशली योर एक्सपेक्टेड क्लासिफायर. दिस y बार इज एक्सपेक्टेड क्लासिफायर. इसके ऊपर ये इस y का कोई असर नहीं हो रहा. ठीक है, सो लिहाजा y का असर होगा तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हो सकता है. तो लिहाजा ये भी फर्दर अंदर चला जाएगा. ये वाली चीज़ पे इस एक्सपेक्टेड वैल्यू y गिवन x का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इस y के ऊपर है. सो लेट मी बेसिकली डू दैट. सो इट बिकम्स दिस y बार ऑफ x
ये चीज़ ऐसे ही बाहर आ गई, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन x ओवर y और इनटू दिस होल थिंग जैसे कि ये पहले थी h bar of x minus y bar of x. ठीक है, let me clear the clutter and now let me help you think through कि ये टर्म क्या बनेगी. So this is expected value of y given x. अगर आपको याद हो आज का लेक्चर शुरू ही यहाँ से हुआ था, जो हमने सबसे पहली डिस्क्रिप्शन निकाली थी, वन डिस्क्रिप्शन जो निकाली थी वो ये निकाली थी, फॉर अ गिवन फीचर वेक्टर x व्हाट्स द एक्सपेक्टेड लेबल. तो हमने एक्सपेक्टेड लेबल इस डिस्क्रिप्शन से निकाला था. सो दिस इज बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ y बार x. तो अगर आप गौर करें, एक्सपेक्टेड लेबल गिवन अ फीचर वेक्टर x इज जस्ट y बार x. ये वन अगर आप पीछे जाके स्लाइड्स में देखें तो आपकी पहली डिस्क्रिप्शन थी. सो जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, दिस y बार x माइनस y बार x वुड बिकम 0 एंड दिस होल थिंग वुड बिकम 0. बेशक पॉज करके इसको फर्दर अपने आप को आप कन्विंस कर सकते हैं. सो नाउ इतनी चीज़ जब रिमूव हो गई तो जो कुछ पीछे रह गया ये अब हम अपने सामने एक दफ़ा लिख लेते हैं. और आपको याद होगा कि ये पूरी चीज़ भी खुद एक सेकंड टर्म थी इन दी ओवरऑल एरर जो हम लास्ट स्लाइड पर निकाल कर आए थे. तो अब उस सब कुछ को गैदर करके एक जगह लिख लेते हैं. सो दिस गिव्स अस द डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्सपेक्टेड टेस्ट एरर ऑफ एन एल्गोरिथम as follows. So we get these three terms. So expected over x, y and d. So d हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है, x, y हमारे एक टेस्ट इंस्टेंस है और ये इसका स्क्वायर्ड एरर है, यानी द डिफरेंस बिटवीन जो मेरा क्लासीफायर परफॉर्म कर रहा है वर्सेस की जो एक्चुअल लेबल है. ये तीन टर्म्स बन गई हैं. अब मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर ज़रा इन तीन टर्म्स को थोड़ा सा स्टडी करें और अच्छी तरह से समझ लें कि ये क्या है. ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस टर्म फर्स्ट. इस टर्म में आपको क्या नज़र आ रहा है? इस टर्म में आपको एक रैंडम वेरिएबल h dx और उसके मीन का डिफरेंस नज़र आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट माय क्लासिफायर वुड प्रिडिक्ट एंड व्हाट द एवरेज क्लासिफायर वुड प्रिडिक्ट. ये सो दिस इज माय क्लासिफायर एंड दिस इज व्हाट द एवरेज क्लासिफायर वुड प्रिडिक्ट. सो बेसिकली इस रैंडम वेरिएबल और इसके मीन का डिफरेंस है. सो हमने जैसे कहा कि ये चीज़ हमारी वेरिएंस है, how much a particular classifier varies and across. फिर जब हम ये सारे classifiers के देखते हैं, so this is the expected variation from the mean और उसका हमने square किया हुआ है. So this is by definition your variance. हम पहले भी ये बात कर चुके हैं. Now let's look at this second term और इस पे थोड़ा सा गौर करें. What is this? This y is the actual label. ठीक है, इतना तो हमें क्लियर है, ये तो एक्चुअल हमारे टेस्ट डेटा पॉइंट का लेबल है. What is this? This is the expected label. अभी हमने चंद मिनट पहले ये बात की थी ऊपर भी. एक्सपेक्टेड लेबल क्या होता है? एक्सपेक्टेड लेबल वो लेबल होता है जो कि हम एट बेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो गिवन ऑल ऑफ द ट्रेनिंग डेटा जितना हमारे पास है, यहाँ डेटा का मसला ही कोई नहीं है, सो लिहाजा जितना भी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा मौजूद हो, द बेस्ट लेबल दैट एनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन आउटपुट इज दिस इज द बेस्ट पॉसिबल लेबल. ठीक है, यानी ये किसी हाइपोथेसिस से नहीं आ रहा, दिस इज द एक्चुअल एक्सपेक्टेड लेबल. सो जो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस लेबल होगा, ये वो डिफरेंस है जिससे बेहतर हम कुछ कर नहीं सकते. यानी अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इनकंसिस्टेंट है. यानी एक ही सेट ऑफ इनपुट्स के लिए हो सकता है कि बहुत मुख्तलिफ आउटपुट्स लिख रहा हूँ. हमने याद है पहले भी कहा था ना कि इसको हम इनकंसिस्टेंट ना भी अगर कहें, हम ये कहेंगे कि कोई और फीचर हो सकता है इसमें से मिसिंग हो. बट दिस इज द नॉइज इन द डेटा सेट. दिस इज जो कि जिसका फर्दर कोई भी एल्गोरिथम जितना मर्जी डेटा सेट आप उसके ऊपर थ्रो कर दें, वो इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता. सो दिस इज द नॉइज टर्म. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट पॉसिबल प्रेडिक्शन दैट वी कैन हैव एंड द एक्चुअल लेबल. दैट्स द नॉइज. ठीक है, इसका कोई ताल्लुक हमारे एल्गोरिदम की कैपेबिलिटीज से नहीं है. इसका ताल्लुक सिर्फ ये है कि जो हमारे एक्सपेक्टेड लेबल है जो वहाँ होना चाहिए था वर्सेस जो एक्चुअल लेबल है जो वहाँ पर है. ठीक है, ऑल राइट. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड टर्म. What is this? Again, this is your expected label. The best possible label that any machine learning algorithm can produce. ठीक है? What is this? This is the expected hypothesis. So this is the label coming from the expected hypothesis. यानी ये वो है जो मेरे machine learning algorithm से लेबल निकल कर आ रहा है. सो मेरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कह रहा है कि लेबल ये होना चाहिए, और ये है जो कि बेस्ट पॉसिबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहेगा कि जो लेबल होना चाहिए. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड लेबल. सो इसका इन दोनों के डिफरेंस का क्या मतलब है? दिस इज द और यहाँ पर अब एक्चुअल लेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर नॉइज की भी बात नहीं हो रही. नॉइज की बात अगर हो रही होती तो हम वाई की बात करते हैं, यहाँ वाई बार की बात हो रही है. यानी मशीन लर्निंग क्लासीफायर एट बेस्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है, और मशीन लर्निंग क्लासीफायर ने जो प्रोड्यूस किया है फॉर आवर गिवन ए आर एल्गोरिथम, जो उसने प्रोड्यूस किया है वो ये है.
So this is basically the systematic error which is done by this particular algorithm in comparison to what could have been done. So यहाँ अगेन ये बात जरूर जहन में रखें, अब यहाँ y नहीं है, या y की बात नहीं हो रही कि y से कितना दूर है, यहाँ हम उससे दूर हैं जो प्रिडिक्ट करने वाला प्रिडिक्ट कर सकता है. सो बेस्ट प्रिडिक्शन से हम कितने दूर हैं? सो बेस्ट प्रिडिक्शन से हम इतने दूर हैं, लिहाजा ये हमारी बायस स्क्वायर टर्म, क्योंकि ये जाहिर है बायस तो अंदर वाली चीज है, तो ये बायस स्क्वायर है. सो नाउ इफ आई जस्ट रिमूव ऑल ऑफ द क्लटर एंड आई कैन जस्ट राइट इट आउट मोर नाइसली, हमारी ये तीनों टर्म्स बहुत क्लियरली हमारे सामने आ गई. The first term is the variance. It is the difference between the mean, what the mean classifier, what the expected classifier would produce, and what my particular classifier, one instance of a decision tree produces. ठीक है, ये HD जहाँ पर D मौजूद है ना, वहाँ पे डेटा सेट D पर ट्रेन हुआ हुआ है. ये एक इंस्टेंस, ये वाला पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ दिस एल्गोरिथम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैं अगर इसको यहाँ पर लिख ही दूँ आप लोगों के लिए, so this is my instance of the algorithm, and this is the expected hypothesized label. ये इन दोनों का डिफरेंस है. सो मेरे इंस्टेंस ऑफ ए का hypothesized label and the expected hypothesized label. So mean के साथ डिफरेंस आ रहा है, लिहाजा this is our variance. यहाँ पर क्या है दूसरी टर्म में हमारे पास? This is the actual label, and this is the label that any machine learning classifier, any best classifier would produce. So this is the best possible prediction given data. So ये best prediction है and this is the actual label. इन दोनों का डिफरेंस नॉइज है, क्योंकि होना ये चाहिए लेबल है ये, तो इसका मतलब है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो नॉइज है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते. ये डेटा सेट के अंदर ही इनकंसिस्टेंसी है. एंड फाइनली यहाँ पर this is the best prediction, and this is the prediction of my algorithm A. और इन दोनों का डिफरेंस हमारा बायस है, और क्योंकि ये स्क्वायर में आ रहा है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर टर्म है. सो दिस इज द बायस स्क्वायर. ठीक हो गया. यानी इन अदर वर्ड्स ये जो बायस की टर्म आ रही है, दिस एसेंशियली इज बिकॉज कि फर्ज करें हमने हमारा एल्गोरिथम एज्यूम कर रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो लीनियर होना चाहिए, जबकि रिलेशनशिप नॉन लीनियर है. तो ये वो बायस है कि जितना मर्जी आप डेटा इस पे थ्रो करते जाएं, आपका लीनियर एल्गोरिथम कभी भी नॉन लीनियर नहीं बनेगा. आपकी स्ट्रेट लाइन कभी भी, या स्ट्रेट हाइपरप्लेन्स जो हैं वो कभी भी अपनी इस लीनियरिटी से डिवर्ज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है. सो नाउ यू हैव सीन द एंटायर decomposition of this expected test error of algorithm A for any journal algorithm. ठीक है जनाब, तो अब आपके पास यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आ गई. आपके पास बायस, वेरिएंस और नॉइज आ गई. सो योर वेरिएंस कैप्चर्स हाउ मच योर क्लासिफायर चेंजेस इफ यू ट्रेन ऑन अ डिफरेंट ट्रेनिंग सेट. ठीक है, वो HD का डिफरेंस था ना, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HD. ठीक है, सो किसी दूसरे पर ट्रेन करेंगे तो कितना बदल जाएगा. सो हाउ ओवर स्पेशलाइज्ड इज योर क्लासिफायर टू अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेट, कितनी ओवर फिटिंग हुई हुई है. सो इस पर्टिकुलर D ने कितना डिफरेंस किया है मीन से. ठीक है, सो इफ वी हैव द बेस्ट पॉसिबल मॉडल फॉर आवर ट्रेनिंग डेटा, हाउ फार ऑफ आर वी फ्रॉम द एवरेज क्लासिफायर. ठीक है, सो उस एवरेज क्लासिफायर से हम इन जनरल कितना दूर हैं. ठीक, बात समझ में आ गई. नॉइज टर्म है हाउ बिग इज द डेटा इंट्रिंसिक नॉइज. सो दिस एरर मेजर्स एम्बिग्यूटी ड्यू टू योर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीचर रिप्रेजेंटेशन. सो यू कैन नेवर बीट दिस, इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ द डेटा. ये तो डेटा सेट के अंदर ही आ रही है, इसको हम इसलिए आमतौर पर इररिड्यूसिबल नॉइज भी कहते हैं. एंड देन फाइनली बायस, व्हाट इज द इनहेरेंट एरर that you obtain from your classifier even with infinite training data. So this is due to your classifier being biased to a particular kind of solution. So for example a linear classifier है, जो भी उसके पहले से assumptions हैं आपकी यूनिवर्स के बारे में, आपकी डेटा सेट के बारे में. In other words, bias is inherent to your model. So bias is inherent to your model, noise is inherent to your data set, and variance is basically the difference across classifiers, most probably either due to the data sets जिनके ऊपर वो ट्रेन हो रहे हैं and the amount of training that they're getting on that particular data set. ठीक है, तो as a data scientist, your job is to first of all understand when you get some error, you need to understand to which of these categories does your error belong, और इनमें से कौन सी वैल्यू हाई है. इस वक्त वेरिएंस हाई हुई हुई है, बायस हाई हुई हुई है, या नॉइज हाई हुई हुई है. और जो भी चीज़ बढ़ी हुई है, अगर नॉइज हाई है तो थोड़ा सा फंस गए हो सकता है एक फीचर चेंज करके या किसी और चीज़ से कुछ फ़ायदा हो, लेकिन
अदरवाइज ये बायस और वेरिएंस, जिसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ी सी बात और भी आगे इस पे कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये वो दो चीज़ें हैं जिसको हम फर्दर फिर रिड्यूस करने पे काम कर सकते हैं। ये वो डायग्राम्स हैं जो हम इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो पहले नीचे वाली अगर हम डायग्राम को देख लें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वेरिएंस, हाई वेरिएंस, लो बायस एंड हाई बायस। सो दिस इज़ अ सिचुएशन वेयर यू हैव बोथ लो वेरिएंस एंड लो बायस, यानी आप टारगेट को हिट भी कर रहे हैं एंड यू आर नॉट वेरिंग अ लॉट अक्रॉस द वेरियस क्लासीफायर्स दैट यूर ट्रेनिंग। सो आप बार बार रिट्रेन करके भी अगर रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर यू हैव लो बायस, यानी आप एम तो सही जगह ही कर रहे हैं, बट यू हैव हाई वेरिएंस, आप सही निशाना अक्सर नहीं लगा पाते, इधर उधर चला जाता है। सो देयर इज अ वेरिएंस अक्रॉस वेरियस ट्रेनिंग डेटा सेट्स जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली यहीं से वो वाली बात आती है कि इस वेरिएंस को ख़त्म करने के लिए क्यों ना फिर हम इन सारे के सारे पॉइंट्स की एवरेज ले लें। अगर हम इन सब की एवरेज ले लें तो ये हमें सही पॉइंट की तरफ ले आएगा। इफ़ द बायस इज़ लो एंड इफ़ द वेरिएंस इज़ हाई एंड इफ़ वी जस्ट डू एग्रीगेशन वोटिंग, या अगर हम रिग्रेशन कर रहे हैं तो मीन अक्रॉस ऑल ऑफ दीज डिसीजन पॉइंट्स, जो ये ब्लू आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ये आपको यहाँ सेंटर में होपफुली कोई पॉइंट दे देगा, तो आपकी वेरिएंस रिड्यूस हो जाएगी। एग्जैक्टली यही वो काम है जो कि हम रैंडम फॉरेस्ट के अंदर करते हैं, बैगिंग करते हुए, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन करते हुए, जैसा कि हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हाई बायस है, तो आप एम ही गलत कर रहे हैं, इनहेरेंटली आपका निशाना ही किसी गलत तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी वेरिएंस तो बहुत लो है, आप सारे निशाने एक ही जगह मार रहे हैं, लेकिन वो जगह गलत है, ठीक है। और ये दिस इज़ द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन वेयर इवन अगर आप इनकी एग्रीगेशन भी कर लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप यहाँ कहीं सेंटर को हिट करना शुरू कर देंगे, यानी आप इस किस्म की सिचुएशन में आ जाएंगे। सो वेरिएंस रिडक्शन मेथड जो हैं वो बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप इधर आ जाएंगे इससे, इसको करके भी। तो यहाँ आपकी बायस प्रॉब्लम है, आपका जो क्लासीफायर है वो बायस्ड है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिस्टमैटिक एरर्स। सो योर वेरिएंस एरर्स आर नॉट सिस्टमैटिक, योर बायस एरर्स आर सिस्टमैटिकली skewed off the target of the bullseye in one particular direction. और यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि योर टोटल एरर, दिस ब्लैक, इज कंपोज्ड ऑफ योर वेरिएंस एरर्स एंड योर बायस एरर्स। सो इन दोनों के सम करके, और यहाँ कहीं नॉइज भी आप बीच में शामिल कर सकते हैं, बट ये इन दोनों एरर्स को मिलाकर आपका ओवरऑल एरर बन रहा है। एंड यू आर एसेंशली लुकिंग फॉर अ स्वीट स्पॉट जहाँ पर आपके पास लोएस्ट बायस और लोएस्ट वेरिएंस आती है। और यहाँ पे जो बायस है उसकी एक वजह वो भी होती है कि आपका डेटा अभी आपका जो मॉडल है वो अंडर ट्रेंड है, यानी वो पहले से जो एजम्पशंस लेकर आ रहा है उसके बारे में, जैसे कि अगर आपके पास नाइव बेस है और वो अपने प्रायर्स जो उसने पहले से सेट किए हुए हैं उनकी बेस पर चल रहा है, तो हो सकता है उसके एरर बहुत हाई हों। लेकिन इवेंचुअली जब वो आपके डेटा को बेहतर तौर पे समझने लगता है तो इवेंचुअली द बायस गोज डाउन, बट जब वो ओवरफिट करने लगेगा तो योर वेरिएंस विल स्टार्ट क्लाइंबिंग। ये हर मॉडल के साथ इसी तरह से होगा। इवेंचुअली जैसे जैसे वो डेटा को बेहतर समझता जाएगा, एक पॉइंट के बाद उसकी वेरिएंस राइज करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा दिस इज काइंड ऑफ अ स्वीट स्पॉट दैट वी आर लुकिंग फॉर, वेयर देयर इज लो बायस एंड लो वेरिएंस। ऑल राइट, सो ऑल्दो कि ये डिस्कशन हम इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन वेरी ब्रीफली हम इसको रिपीट करते हैं, मोस्टली फ्रॉम वाइनबर्गर्स लेक्चर नोट्स। सो आप पहले इस डायग्राम को देख लें। यहाँ पर यू आर सीइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द ट्रेनिंग इंस्टेंसेस। सो जैसे जैसे ट्रेनिंग बढ़ती जा रही है, यू हैव दिस लाइन विच इज़ द एक्सेप्टेबल एरर लाइन। सो इससे टेस्ट एरर जो है वो आपका नीचे नीचे होना चाहिए। सो इससे बेहतर आपका एरर होगा, इससे नीचे होगा तो ट्रेनिंग और टेस्ट एरर को हम अच्छा समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग एरर का ग्राफ नजर आ रहा है और यहाँ टेस्ट एरर का ग्राफ, ठीक है। सो ऑन द वर्टिकल एक्सिस you have the error. So you have here two regimes. In the first regime, the training error is very low. It's below the acceptable line and the test error is very high. So training data पे आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट पे बुरा परफॉर्म कर रहा है. And in the second regime, you have the test and training error are very close to each other, but both of them are above the acceptable error line. So दोनों पे ये बुरा परफॉर्म कर रहा है. The regime 1 is due to high variance. The regime 2 is due to high bias. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आप अगर ज़रा क्विकली एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि जो ये वाले फर्स्ट रिजीम की सिचुएशन है वो क्या है, जिसको हमने हाई वेरिएंस सिचुएशन कहा है। यहाँ पे ट्रेनिंग एरर जो है वो लो होगा और टेस्ट एरर हाई होगा, और यहाँ पे ट्रेनिंग एरर आमतौर पे एक्सेप्टेबल रेंजेस में होगा, ठीक है। एंड द टेस्ट एरर जो है वो एक्सेप्टेबल रेंजेस से ऊपर होगा। तो इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? या तो डेटा बढ़ाएं, आपका जो है वो डेटा कम है तो इसलिए आप जो वेरिएंस है उसको नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं और उसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस ही नहीं देखे, दैट्स व्हाई यू हैव अ लॉट ऑफ वेरिएंस। या अपने मॉडल की कम्प्लेक्सिटी कम करने की कोशिश करें, तो फीचर्स रिड्यूस करें या कुछ और करें, या क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन है हाई वेरिएंस के ऊपर, हमने देखा था वो बिल्कुल ही जाकर ओवरफिट कर लेते हैं। या फिर आप ये जो है वो बूटस्ट्रैप्ड एग्रीगेशन यूज़ करें, जो कि हम रैंडम फॉरेस्ट के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे।
सेकंड regime जो कि हाई बायस की वजह से है, जहाँ पर दोनों पर ही रिजल्ट बुरे आ रहे हैं, ना ट्रेनिंग सेट के ऊपर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना टेस्ट सेट के ऊपर कर रहा है. सो this second regime indicates high bias. The model is being used is not robust enough to produce an accurate prediction. ठीक है. सो दैट मीन्स कि और इसके सिम्टम्स क्या है कि आपका ट्रेनिंग एरर जो है वही आपके एक्सेप्टेबल रेंजेस से ज़्यादा बुरा है. सो ट्रेनिंग पे ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जिस पे आप ट्रेन हुए हैं. सो दैट इंडिकेट्स कि आपको ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज़ करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल कर्नलाइज करने की ज़रूरत है, या नॉन लीनियर मॉडल्स की तरफ जाने की ज़रूरत है. मज़ीद फीचर्स से हेल्प हो सकती है, या बूस्टिंग की कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो ग्रेडियंट बूस्टेड ट्रीज या एडा बूस्ट, ये जिस तरह की टेक्निक्स हैं, यू कैन यूज़ अ बूस्टिंग टेक्निक टू बेसिकली रिड्यूस द बायस इन योर मॉडल्स. तो जनाब ये हमारी आज डिस्कशन थी regarding the error decomposition into bias, variance and noise errors. I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं. I do understand and agree that this was a slightly more involved lecture as compared to our usual lectures. लेकिन hopefully if you have understood it, आपके जहन में ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमारा error जो है वो किन component से बना होता है, और उसको अलग अलग समझ के किस तरह से हम उसको reduce कर सकते हैं और अपने results को बेहतर कर सकते हैं. ठीक है. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह we'll meet in the next video.